السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی موزم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے نیوکلیر پاور ری ایکٹر جو کہ یو اے ای کی بجلی کی ضروریات کا 25% بوجھ برداشت کرتا ہے جناب، اس کے اوپر ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے جاری کیے جانے والے سرکاری اعلامیے میں اس حملے کی تصدیق کی گئی ہے اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ جو ڈرون اٹیک ہے یہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیا گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی ابوظہبی کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے جو سرکاری طور پر بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ڈرون اٹیک کی تصدیق کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس حملے سے ری ایکٹر کے الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی ہے اور آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے کسی طرح کی جو تابکاری ہے اس کی کوئی جو ہے وہ تصدیق سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی ابھی تک یہ معلوم ہوا ہے کہ جناب یہ تابکاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو حملہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ براکا نیوکلیر پاور پلانٹ جو کہ الزفرہ میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امریکہ کا ایک فوجی اڈہ بھی موجود ہے، یہاں پر موجود براکا نیوکلیر پاور سٹیشن کے اوپر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس نیوکلیر پاور سٹیشن کے الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی ہے۔ اور یہ بات کہی گئی ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری شدہ پریس ریلیز میں کہ اس وقت آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس حملے کے باوجود بجلی کی پیداوار جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فائر فائٹرز اور ایمرجنسی ٹیموں نے فوری طور پر آگ پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کر لیا گیا ہے، اور تمام احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب مزید اپڈیٹس بھی اس پیش رفت پر جاری کیے جائیں گے۔ یہ جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے یہ متحدہ عرب امارات کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کیا ایران کی جانب سے واقعتاً متحدہ عرب امارات کے یہ جو براکا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے؟ اس خبر سے پہلے یعنی اس کی مزید تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے برطانوی اخبار ہے ٹیلی گراف، اس کی ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ آج شائع کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکن حکومت یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے متحدہ عرب امارات کو ایران کے ایک اہم جزیرے پر قبضے کی ترغیب دی ہے، اور کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ واشنگٹن کا خلیجی ریاستوں کو ایران کے خلاف جنگ میں زیادہ کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعض اعلیٰ حکام نے متحدہ عرب امارات کو ایران کے ساتھ جاری جنگ میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے اور خلیج میں واقع یعنی ایران کے ایک اہم جزیرے پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس جزیرے کا نام لوان جزیرہ ہے جو کہ تہران کے قریب ہے، اور یہ وہی جزیرہ ہے جس پر اپریل کے آغاز میں جو فضائی حملے ہیں اس کے دوران بمباری کی گئی تھی، اور ایران کی جانب سے یہ جو بمباری ہے اس کی ذمہ داری متحدہ عرب امارات پر عائد کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس بمباری میں متحدہ عرب امارات کی حکومت جو ہے وہ براہ راست شریک ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اسے منسوب یہ جملہ کوٹ کیا گیا ہے جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے متحدہ عرب امارات سے کہا ہے کہ گو ٹیکن، یعنی جاؤ اور جا کر یہ لے لو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یو اے ای بوٹس آن دی گراؤنڈ جو ہے وہ کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا۔ یعنی اس وقت امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرے متحدہ عرب امارات، اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ نہ صرف ایران پر حملہ کرے بلکہ ایران کے جو جزیرہ ہے لوان اس کے اوپر بھی حملہ کرے، اور یہ جو لوان جزیرہ ہے یہ دبئی سے تقریباً 162 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایران کا حصہ ہے، اور یہ بھی ایران کی آئل انڈسٹری کا اور ایران کی آئل ایکسپورٹ کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں پر روزانہ 55,000 بیرل کی گنجائش ہے، یعنی اس جزیرے کے اوپر بھی ایران نے اپنی آئل سٹوریج سائٹ رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر
जो मौजूद एक छोटी रिफाइनरी है उसके ऊपर भी अप्रैल में मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अटैक किया गया था। इस वक्त चंद ऐसे जज़ायर हैं जिनको लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान खींचातानी है, जिसमें सीरी, अबू मूसा और ग्रेटर एंड लेसर तम ये जज़ायर शामिल हैं। ये 1971 में इन पर ईरान ने कब्ज़ा किया था और यूएई इनके ऊपर तारीख़ी दावा रखता है और ये स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम भी हैं और इनसे जो अब नए हुरमज़ है उस तक की रसाई भी आसान हो जाती है। अब अगर हम गौर करें, ये जो दोनों ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये बराह रास्त एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो टेलीग्राफ की खबर है इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात को उकसाया जा रहा है कि वो जाकर ईरान के ऊपर हमला कर दे, ईरान के जज़ायर जिसके ऊपर उनका तनाज़ा चल रहा है वहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड करे, वहाँ पर जनाब मौजूद रहे, वहाँ पर कब्ज़ा करे, ईरानी फोर्सेस को वहाँ से बेदखल कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर ईरान का रद्द अमल सामने आएगा और वो जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ऑयल स्टोरेज साइट्स हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उनके ऑयल एक्सपोर्ट रूट्स हैं, उनकी पाइपलाइंस हैं, उनको निशाना बनाएगा और इस बुनियाद के ऊपर जंग का आगाज़ हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी तक ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस पर दबाव डाला गया कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दे, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ना तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऑफिशियली अमेरिका को यस कहा, ना ही अभी तक नो कहा, लेकिन इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का जो राय है वो इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ है। हमने दिल्ली के अंदर जो ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा का इजलास था इसके दौरान भी मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान बराह रास्त लफ्ज़ी गोलाबारी की खबर आपके साथ शेयर की थी। ये ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात ही थे जिनकी बुनियाद के ऊपर ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा के इजलास का एलामिया भी जारी नहीं हो सका, क्योंकि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ने इस एलामिये में इसराइल और अमेरिका की मज़म्मत करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान दोनों के दरमियान इस वक्त शदीद तनाव और कशीदगी मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में ये इस खबर का सामने आना कि मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बिजली की 25% ज़रूरियात को पूरा करता है, उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है और मीडिया ये ख़बर दे रहा है कि जनाब ये ड्रोन अटैक ईरान की जानिब से फ़ायर किए जाने वाले ड्रोन का नतीजा है। तो इसका मतलब ये है कि इस हमले की आड़ में मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान पर हमले के लिए उकसाया जाएगा या ये अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तय पाने वाली किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा होगा कि जनाब ड्रोन अटैक हुआ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुआ है, हमारे ऊपर ये जो 40 रोज़ा जंग थी उसमें 3000 से ज़ायद जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल फायर किए गए हैं, 2500 के करीब ड्रोन्स फायर किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है और मुतअद्दिद मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात इन तमाम चीज़ों का इजहार कर चुका है और कह चुका है कि ये जो हमारे पास जवाब देने का हक़ है हम वो महफूज रखते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जिसका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है, ये एक इसको साजिश नज़रिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये मामलात इसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि हालिया तनाज़े के दौरान मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था, उसको भी अमेरिका की जानिब से कायल किया गया था कि वो ईरान के ऊपर हमला आवर होकर अपना जो माजी का स्कोर है उसको सेटल कर दे। कतर के साथ भी इसी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कतर से भी कहा गया था कि जनाब अल अदीद के ऊपर फायरिंग हो गई है, हमले हो गए हैं, कतर भी जवाब दे। बहरीन भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है, लेकिन किसी भी अरब मुल्क की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। अब ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ये भी इनफैक्ट इसी सिमत में इशारा कर रही हैं कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, क्योंकि ये बात भी माजी में
सामने आ चुकी है कि ईरान के जो शायद ड्रोन्स हैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग अमेरिका कर चुका है, और उस रिवर्स इंजीनियरिंग से जो ड्रोन्स हैं वो मुख्तलिफ औकात में चलाए गए हैं, ये कहते हुए कि जनाब ये ईरान की जानिब से हमला किया गया है, यानी ईरान और अरब ममालिक के दरमियान तनाज़े को फैलाने की ये एक कोशिश नज़र आ रही है। अब तक की जो खबरें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर ये एटमी प्लांट के हवाले से जो कि बराका में है, इसकी तफसीलात में तो यही बात निकल रही है कि ड्रोन अटैक किया गया है, और ड्रोन अटैक मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से किया गया है। और अगर हम इस खबर का, टेलीग्राफ की खबर, दोनों को साथ मिलाकर देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात या तो ईरान के ऊपर हमले का कोई जवाज़ तलाश कर रहा है, या इस ड्रोन अटैक के ज़रिए अमेरिका की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान पर हमला आवर होने की तरगीब दी जा रही है। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के लिए इस जंग से बाहर निकलने और इसको एक इलाकाई तनाज़े में तब्दील करने की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। और जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला आवर होना चाह रहा है। और अभी मेरी नज़र से एक और ख़बर भी गुज़री है जिसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि अमेरिका ने जो जंग बंदी की तजावीज़ दी थी ईरान को, ईरान की जानिब से उसका जो जवाब है वो दे दिया गया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी है फारस, जो ईरान की पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता एक न्यूज़ एजेंसी है, उसमें कहा गया है कि ईरान की तरफ से जो शराइत अमेरिका को दी गई थी, अमेरिका ने उसका जवाब भिजवा दिया। इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब वही जवाब लेकर ईरान गए थे और उसको अब फारस न्यूज़ ने सामने रख दिया है। ईरान की जानिब से जो 5 शराइत पेश की गई थी जिनके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी शराइत में तमाम महाज़ों खुसूसन लेबनान में जंग का ख़ात्मा, ईरान पर पाबंदियों का ख़ात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, ईरान को जंगी हरजाने की अदायगी और अब नए हुरमज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना, ये 5 मुतालबात थे जो कि ईरान की जानिब से दिए गए थे। अब इन मुतालबात पर अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आया है और फारस न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जंगी हरजाना अदा करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया है। ईरान की तमाम एटमी तनसीबात को बंद करने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि ईरान को महज एक न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन वो भी IAEA की कड़ी निगरानी के अंदर। इसके साथ साथ ये बात कही गई है अमेरिकन रिस्पॉन्स में कि ईरान के मुंजमद असासों का 25% भी नहीं दिया जाएगा, यानी अगर मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे तो वो 5, 10 या 15 या 20% के करीब होंगे। इससे ऊपर ईरानी असासाजात को बहाल नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ ये बात भी कही गई है कि मुज़ाकरात तमाम महाज़ों पर जंग के ख़ात्मे से मशरूत होंगे, यानी ये कहा गया है ईरान को भी कि उसे भी जो उसके हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं, चाहे वो यमन में हैं, लेबनान में हैं, फ़लस्तीन में हैं, उनको भी इस जंग बंदी में ईरान की जानिब से शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जंग बंदी की ये जो वसी तर जंग बंदी है, इसका तमाम तर जो दारो मदार है वो ईरान के ऊपर डाल दिया जाएगा। अब ये जो जवाब अमेरिका का आया है, इस जवाब को तो मुझे नहीं लगता कि ईरान कबूल करेगा, और यही वजह है कि इस जवाब के बाद ईरान की जो सूरत हाल है वो इसकी रिजेक्शन की सूरत में सामने आएगी, और ऐसे हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला और अमेरिका की जंगी तैयारियां और इसराइल में होने वाला जो मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर अटैक है, ये तीनों एक ही सिलसिले की कड़ी नज़र आती हैं और वाज़े होता हुआ नज़र आ रहा है कि मामलात अब दोबारा जंग की जानिब बढ़ रहे हैं, और इस मरतबा जंग में अमेरिका और इसराइल के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात भी ईरान पर हमलावर होगा। इसके अब काफ़ी इम्कानात पैदा हो गए हैं। अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔